नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आपका स्वागत है संस्कृति यात्रा के इस नए अंक में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की शांत और सुंदर वादियों की तरफ। लद्दाख बौद्ध धर्म के कई मठ या मॉनेस्ट्री का घर है और यहाँ के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक है हेमिस मॉनेस्ट्री, जहाँ हर साल हेमिस उत्सव के नाम से एक अद्भुत उत्सव का आयोजन होता है। ये उत्सव गुरु पद्मसंभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। इस उत्सव की सबसे खास बात होती है उत्सव के दौरान होने वाले आकर्षक नृत्य। ये नृत्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। इस नृत्य में बौद्ध भिक्षु रंग बिरंगे वस्त्रों और मुखौटों को पहनकर नृत्य करते हैं, जिसे छम नृत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वालों के अलावा भी हेमिस उत्सव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो वर्षों से प्रचलित है और आज भी हेमिस मॉनेस्ट्री में उसी श्रद्धा और भव्यता से मनाई जाती है। तो चलिए आज विशेष में देखते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म सेक्रेड डांसेस एट द हेमिस फेस्टिवल के कुछ अंश। Hidden from view by a spur of mountains is the Hemis Gompa. Its presence is heralded by the long money walls and chortens that line the approach. The monastery was established in 1672 AD by King Senge Nampa Gyalwa. Built in the Tibetan style with Kashmiri verandas around it, it juts out of the rugged mountainous landscape, aesthetically blending with the surroundings. It is stated that the king ordered to be built on a magnificent style in his residences, the Vihara of the Three Gems, whence the sun of the doctrine arose in this country, brilliant as the dawn of the day. It is believed that on the 10th day of the 5th month in a monkey year, Padmasambhava took miraculous birth in a lotus flower in a milky lake. Hemis Festival, celebrated every year to commemorate his birth, is attended by a large number of devotees from all over the world. During the festival, Padmasambhava descends as a representative incarnate of all the Buddhas to bestow grace. He is the founder of the Tibetan tradition and regarded as one of the most extraordinary teachers in Buddhist history. In fact, popularly, he is known as Rinpoche, or the Great Teacher. The chief feature of the festival is the presentation of chums, or the sacred masked dance drama, for 2 days at a stretch. The chum performance takes place simultaneously in 2 different locations. The performance commences in the inner prayer chamber of the Gompa, and then moves out in the Gompa courtyard. The motive underlying the dance drama is the propitiation of evil deities and exorcism of evil spirits to secure safety and good fortune of all. The wearing of the masks and costumes symbolizes the dissolving of the dancer's earthly identity in the deity that is being impersonated. The costumes are mostly silk and brocade, and some of them clearly show Chinese influence. The motifs on them have meaning beyond design. Some, like skulls, spirals, and concentric circles, are tantric symbols. The performance, too, is much more than a mere performance. In a certain sense, it is the achievement of that mystic state of being where we cannot distinguish the dancer from the dance. The chums can be performed only by adepts who have undergone rigorous spiritual training under a guru or master.
the state of identity between the deity and the masker, is brought about by a series of purification rituals and meditational practices. At 9:40 a.m., the conch is sounded thrice from the rooftop. The first call is to the monastery to get ready, the second to march to the gompa, the third to gather in the assembly. The performance begins. To the sound of the welcome music and mantras, the tanka of Gyaltsas Rinpoche, the initiator and founder of Hemis Monastery, is unrolled. The Hatukas, who act as police jesters, mix with the onlookers. Their task is to maintain some kind of order among the audience. They pounce on people, joking and laughing with them. Insiders and outsiders to the performance at all times, they bridge the gap between everyday reality and sacred philosophical tenets that will be expounded in the performance. The ceremonial herald, led by a lama bearing the sacred staff, followed by incense bearers and musicians, enters the arena. The lamas believe that religious music has celestial origins, and the sound of each instrument captivates and relates to a state of mind and consciousness. The long trumpets, for instance, are said to create sound from the womb of the earth and the depth of space. The movements of the 13 black hat dancers are slow and stately. This dance, known as the Chamso dance, is performed to dispel evil forces, as also to mark off the limits of the performance space. Other symbols and meanings can also be identified in this dance. Number 13 is identified with the 13 yugas of the cosmos and 13 rings of the Chortan. It is said that this dance creates a tantric aura of light in the performance space. These dances reappear before every inaugural and climatic movement in the performance. The objective of that dance is to purify the sacred space and recall the objects of worship and the lineage of teachers and disciples. The 16 Dakinis pay their homage to the Guru for his kindness and compassion for mankind. They praise him for descending on earth by riding the rays of the sun. They recall his deeds and entreat him to come again and again in future. This ends the first half of the first day of Chams. The act of slaying the effigy of Adharma symbolically reflects an internal state of the dissolution of egohood. The subsequent dance of the Masters of the Graveyard reiterates the same theme. The dancers wear white masks to signify graveyard ghouls. This dance macabre of non-human beings spontaneously produces mental images of impermanence and transience of life. The scene is now set for the higher education of the soul. Once the ego is curbed,
space is created literally and metaphorically for foregrounding the abiding element of the performance. The little skit performed at the end is pedagogic in theme and substance. Placed as a climax to the conflict between dharma and adharma, it underscores the need for a guru, and through the characters of the hatuks, or disciples, fills in any hiatus that may remain in the people's comprehension of the play. The essentially human relationship of the guru and shishya, compounded equally of fun and reverence, is evocative of what the great teacher or Rinpoche, to whom this festival is dedicated, can mean in present times. The Monkey Year Fair comes once in a cycle of 12 years. The most sacred object in the festivity is the 4-story Tanka painting of Guru Padmasambhava, prepared between 1750 and 1760. This is a marvelous painting, a patchwork of silk cloth of various colors. What is it that the pilgrims take back with them? Viewing the dances represents an aspiration for dharma, a means of self-transformation through accumulation of merit for the audience. The lamas and lay people meet for a common aim of accumulating merit and resisting evil. The festival is a transmitter of this basic truth on which the foundation of Buddhism is based. छम नृत्य और लद्दाख की खूबसूरत वादियों से आगे चलते हैं संस्कृति यात्रा के अगले पड़ाव संवाद की ओर, जहां संवाद होगा हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार, चिंतक और आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह से। वो सिर्फ एक आलोचक नहीं थे, बल्कि हिंदी विचार परंपरा के ध्वजवाहक थे। उनकी लेखनी में जहां एक और गहरी वैचारिक चेतना दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर भाषा, परंपरा और संस्कृति की जड़ों तक पहुंचने की क्षमता भी दिखती थी। चाहे वो उनके निबंध हो, व्याख्यान हो या सार्वजनिक संवाद, हर शब्द विचारों की रोशनी से आलोकित होता है। साहित्य की सेवा के अतिरिक्त उन्होंने एक शिक्षक के रूप में भी राष्ट्र की सेवा की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने न सिर्फ अकादमिक विमर्श को एक नई दिशा दी, बल्कि हिंदी भाषा को वैश्विक बौद्धिक मंचों पर प्रतिष्ठा भी दिलाई। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर नामवर सिंह के विचार हिंदी साहित्य, आलोचना और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में। आप पर किन आलोचकों का प्रभाव पड़ा है? किन से आपने इन्हें आपको प्रभावित किया है अपने लेखन में? देखिए, हिंदी में 3 ही आलोचक हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, और मुझे तीनों के प्रति श्रद्धा भाव है। 45 में आपने मैट्रिक की परीक्षा दी, 45 में मैट्रिक आपका हो गया, उसके बाद बीए में दाखिला आपने हिंदू विश्वविद्यालय में लिया। हाँ। हिंदू विश्वविद्यालय में आपके 2 शिक्षक थे, केशव प्रसाद मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हाँ। पंडित केशव प्रसाद मिश्र जो कि जब पढ़ने आया तो बड़ा नाम था, वो जयशंकर प्रसाद के बड़े ही निकट थे, और उनके साथ कामायनी जब वो लिख रहे थे तब से संबंध उनका था। प्रसाद साहित्य के मर्मज्ञ सबसे केशव प्रसाद मिश्र माने जाते थे। उन्होंने मेघदूत का हिंदी में सबसे अच्छा अनुवाद किया है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि मेघदूत का सबसे कई अनुवाद हुए हैं, लेकिन केशव प्रसाद मिश्र का अनुवाद जो है सर्वोत्तम। पंडित केशव प्रसाद मिश्र संस्कृत के पंडित, संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें जो पढ़ाई जाती थी संस्कृत सरणी नाम से, उन्होंने 3 खंड लिखे थे। केशव प्रसाद मिश्र का कहना ये था कि जो कालिदास की परंपरा है उसमें प्रसाद आते हैं, पंत आते हैं, और एक और परंपरा है भवभूति की जिसमें निराला आते हैं। तो ये दूसरी परंपरा वो कहते थे जी। तो आपकी जो दूसरी परंपरा का सिद्धांत है, क्या वहाँ से बिल्कुल यही आया? हम मान सकते हैं कि वहाँ से आपका दूसरी परंपरा? उन्होंने कहा कि संस्कृत में 2 परंपराएं थी, कालिदास की और भवभूति की, और ये संस्कृत की 2 परंपराओं का एहसास कराया था, लेकिन हिंदी में भी परंपराएं हो सकती हैं कि नहीं, ये नहीं कहा था। ये मैंने अपनी ओर से भी देखने की कोशिश की कि देखें क्या उसी तरह से हिंदी में ही कोई 2 परंपराएं हो सकती है। अगर कालिदास भवभूति की भाषा की दृष्टि से, भावबोध की दृष्टि से, जीवन दृष्टि से हो सकता है,
तो मुझे लगा कि यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि एक निराला है, दूसरे पंथ हैं, दोनों एक तरह के कभी नहीं है। तो मुझे अगर किसी ज़माने में कबीर की एक परंपरा है, तुलसीदास की दूसरी परंपरा है, तो केशव जी के पढ़ाने के से जो मुझको प्रेरणा मिली कि परंपरा नहीं होती, परंपराएं होती हैं। आप हिंदी में एमए नहीं करना चाहते थे, करना चाहते थे प्राचीन भारत और संस्कृति, हाँ इसमें करना चाहते यही थे। नाम था, विषय का नाम यही था। तो फिर आप हिंदी की तरफ कैसे? बीए में कल्चर पढ़ लिया था, तो लगभग ऐसा लगता था कि एक बार मैं कल्चर ही लूँ, हिंदी न लूँ, क्योंकि सुना था कि केशव जी रिटायर होने वाले हैं। बोले कि सुना है कि तुम जा रहे हो कल्चर वाले पढ़ने के लिए। मैं तो सोचता था कि तुमको मैं हिंदी पढ़ाऊँगा। ये सुनते ही मैंने कहा कि नहीं पंडित जी, मैं यही आपसे पूछने के लिए आया था कि आपके चरणों में मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। निर्णय तभी लूँगा, आपका आदेश है, मैं हिंदी पढ़ूँगा। और कल्चर छोड़ करके मैं हिंदी पढ़ने चला गया। डॉक्टर साहब, आपकी रचनावली आनी चाहिए जिससे कि सारी चीज़ें इकट्ठी हो और आप उसका दिशा निर्देश करें, और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। ग्रंथावली में मरणोपरांत मेरे प्रकाशित होनी चाहिए, जीते जी ग्रंथावली नहीं छपनी चाहिए, ये मेरी धारणा है। अपने लेखन के 70 साल और जीवन के 90 साल के इस बिंदु पर क्या हम लोगों को संदेश आप देना चाहते हैं? अभी संदेश देने योग्य मैं नहीं हुआ हूँ। इतिहास रखेगा याद ये 90 वर्ष, स्मृतियाँ, कुछ पल, किताबें, विचार, कुछ लोग, इतिहास रखेगा याद। तो अभी आप सुन रहे थे भारतीय साहित्य के पुरोधा प्रोफेसर नामवर सिंह को। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले पड़ाव माटी सुगंध की ओर। भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय एक विस्तृत परियोजना चला रहा है जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक देखने आज हम आपको लेकर चल रहे हैं असम के कामरूप जिले में स्थित नागरबेरा गांव की ओर। नागरबेरा ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और ये गांव कभी व्यापारियों और शिल्पकारों का गढ़ हुआ करता था, जहां की बांस, मिट्टी और जूट की कलाओं ने अपनी अनूठी पहचान बनाई। आज भी इस क्षेत्र की पारंपरिक शिल्पकला की सुंदरता एक जीवंत विरासत की तरह मौजूद है। तो आइए चलते हैं नागरबेरा गांव की ओर। नागरबेरा असम के कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर बसा है। नागरबेरा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वेटलैंड और वन्य जीव स्थलों के लिए जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे नागरबेरा की पहचान उसकी समृद्ध कृषि और मछली पकड़ने की परंपराओं से होती है। यहाँ के लोग पारंपरिक तरीकों से मछली पकड़ते हैं और उनके मछली पकड़ने के उपकरण वो खुद ही बनाते हैं और सामुदायिक मछली पकड़ना भोगाली बिहू जैसे त्योहारों के दौरान विशेष आयोजन बन जाता है। मछली बाजारों की हलचल और सूखी मछलियों का व्यापार नागरबेरा के स्थानीय जीवन का अभिन्न हिस्सा है। फसल कटाई और मछली पकड़ने के त्योहारों में पारंपरिक गीतों, नृत्यों और सामुदायिक भोज के साथ उत्सव मनाए जाते हैं, जिससे नागरबेरा के गांवों की जीवन शैली और संस्कृति का अद्भुत तालमेल देखने को मिलता है। नागरबेरा में बिहू का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो यहाँ की संस्कृति और सामुदायिक जीवन का प्रतीक है। साल में 3 बार मनाए जाने वाले रोंगाली, भोगाली और कंगाली बिहू हर बार अपने अलग रंग और उत्साह के साथ आते हैं। रोंगाली बिहू वसंत के आगमन और नए साल की शुरुआत का जश्न है, जहां पारंपरिक बिहू नृत्य, ढोल, पेपा, बांसुरी और टोकारी जैसे वाद्य यंत्रों के संगीत और पिठा, लारू, तिलपिठा और धान का लड्डू जैसे स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया जाता है। भोगाली बिहू फसल कटाई के बाद का उत्सव है, जिसमें सामुदायिक भोज और सामूहिक मछली पकड़ने की परंपराएं शामिल हैं। कंगाली बिहू खेतों की रक्षा के लिए दीप जलाने और प्रार्थना का समय होता है। पारंपरिक उत्सवों और सामान्य जीवन में भी यहाँ की महिलाएं
मेखेला चादर में दिखाई देती हैं। नागरबेरा के गांवों में असमिया गहना, जिसे असमिया गोहना भी कहा जाता है, का प्रचलन है। कुछ लोकप्रिय गहने हैं जूनबिरी, ढोलबिरी, लोकापारो जैसे हार और हाथ में पहनने के लिए गमखारू और मुट्ठी खारू। नागरबेरा की पारंपरिक कला और शिल्प कला क्षेत्र की अनूठी पहचान को दर्शाते हैं। यहाँ के कारीगर बांस और कैन से बुनाई की वस्तुएं बनाते हैं, जैसे बास्केट और सजावटी सामान, जो न केवल स्थानीय बल्कि बाहरी बाजारों में भी लोकप्रिय है। असम का एक स्थायी तत्व है यहाँ के नामघर। नागरबेरा का भी अपना एक नामघर है, श्री श्री हरिनाम घर। नामघर, जो कि 15वीं सदी के संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा स्थापित किया गया, भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और वैष्णव धर्म का हिस्सा है। यहाँ नियमित रूप से भजन और कीर्तन होते हैं, जिन्हें नाम प्रसंग कहा जाता है। नामघर न केवल पूजा स्थल है, बल्कि सामुदायिक सभाओं और सांस्कृतिक आयोजनों का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। ऐसी ही अपनी दिनचर्या से अपने घर लौटते हैं नागरबेरा के गांवों में बसे निवासी। इनके ये घर स्थानीय सामग्री जैसे बांस, लकड़ी और मिट्टी से बने होते हैं, जो गांव की वास्तुकला की पहचान है। ये घर विशेष रूप से मानसून के मौसम के लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि बाढ़ के पानी से बचा जा सके। छतें आमतौर पर घास या ताड़ की पत्तियों से ढकी जाती हैं, जो न केवल गर्मी को रोकती हैं, बल्कि घर को प्राकृतिक सुंदरता भी प्रदान करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे इस गांव की सांस्कृतिक छटा और पारंपरिक शिल्पकला उसकी आत्मा को जीवंत रखते हैं, जो इसे परंपरा और रचनात्मकता का एक अनूठा सम्मिलन बनाते हैं। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.igNCA@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, और जाते जाते देखिए हाल ही में हुए कुछ सांस्कृतिक आयोजनों की झलकियां। 14 अगस्त 2025, एक दिन जब देश ने विभाजन की उस दर्दनाक स्मृति को फिर से संजोया, जिसने लाखों लोगों को अपनी जड़ें छोड़ने पर मजबूर कर दिया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। राजधानी दिल्ली के सेंट्रल पार्क में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों और विस्थापितों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में एज दे सॉ इट, पार्टीशन ऑफ 1947 पुस्तक का लोकार्पण हुआ, जिसमें विभाजन पीड़ितों की सच्ची कहानियां दर्ज हैं। इस मौन मार्च में कई केंद्रीय मंत्री, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित गणमान्य अतिथि शामिल हुए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सभी क्षेत्रीय केंद्रों, बेंगलुरु से लेकर गुवाहाटी तक, पुदुचेरी से लेकर जम्मू कश्मीर तक पर विभाजन विभीषिका की पीड़ा और भारत की एकता को दर्शाते हुए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बेंगलुरु में डॉक्यूमेंट्री, गीतों और व्याख्यानों ने विभाजन की स्मृतियों को जीवंत किया। पुदुचेरी में विभाजन पर केंद्रित कविताएं और डॉक्यूमेंट्री अ न्यू पोस्ट बॉक्स ने दर्शकों को भावुक कर दिया। रांची में पद्मश्री बलबीर दत्त और विश्वविद्यालय के कुलपति ने विद्यार्थियों से संवाद किया। गोवा और वडोदरा में विशेष चित्र प्रदर्शनियों ने इतिहास को चित्रों में उकेरा। तिरुपति में 1000 फीट लंबा तिरंगा लेकर निकाली गई देशभक्ति रैली ने सबका ध्यान खींचा। वाराणसी में चित्रकला प्रतियोगिता और व्याख्यान के जरिए युवाओं ने विभाजन की वेदना को समझा। त्रिशूर, जम्मू और कोलकाता में संगोष्ठियां, मौन मार्च और फिल्म प्रदर्शन हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। गुवाहाटी में विश्वविद्यालयों में प्रदर्शनी और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करके नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ा गया। इन आयोजनों ने न सिर्फ विभाजन की त्रासदी को याद किया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि एकजुट भारत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 15 अगस्त 2025 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आजादी की 79वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता दिवस समारोह बहुत धूमधाम से मनाया गया। केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने ध्वजारोहण करके समारोह की शुरुआत की। वहीं सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने
उपस्थित लोगों को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की ओर मिलकर बढ़ने का संकल्प दिलाया। केरल की सांस्कृतिक नगरी त्रिशूर में एक अनोखी प्रस्तुति देखने को मिली, जब IGNC के क्षेत्रीय केंद्र त्रिशूर में पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र मिझावू पर एक रोचक व्याख्यान प्रदर्शन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में न सिर्फ इस पारंपरिक वाद्य यंत्र के इतिहास और तकनीक पर प्रकाश डाला गया, बल्कि इसकी जीवंत प्रस्तुति ने दर्शकों को इसकी ताल पर झूमने को मजबूर कर दिया। गौरतलब है कि मिझावू का प्रयोग विशेष रूप से कथकली और कुथु जैसे पारंपरिक नाट्य रूपों में किया जाता है। IGNC के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने असम सरकार के म्यूजियम निदेशालय और आदिवासी एवं जनजातीय धर्म संस्कृति विभाग के सहयोग से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में राष्ट्रवाद, पहचान और पूर्वोत्तर विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया। असम स्टेट म्यूजियम में हुए इस विशेष कार्यक्रम में श्री प्रांजल सैकिया, प्रोफेसर नीलिमा भगवती, नवा ठकुरिया और मीतानाथ बोरा जैसे प्रतिष्ठित वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। ये आयोजन डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।